Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education. Today we discuss about interest on drawing. Chapter first is fundamental and presented by Bhavnagar, who are the postgraduated teacher in accountancy. So let's we discuss about how to treat the interest on drawing in examination. So take a look one by one each and every topic or point for you. Interest on drawing. Drawings means cash or goods withdrawn from the business by the proprietor for personal use. It reduces the capital of the proprietor. Interest on drawings will be charged from the partner's capital account only if it is mentioned in the partnership deed. If partnership deed is silent, no interest on drawings will be charged. According to the business entity concept, interest on drawing will be treated as income for the business and loss for the partners. ड्राइंग्स वो होती है जो पार्टनर्स कैश विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से, उससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है और जो कि उस पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ये बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट होता है पर पार्टनर्स के लिए लॉस होता है. सो दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. एंड नेक्स्ट वन इज़ मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. फर्स्ट इज़ व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन बाय द पार्टनर आफ्टर रेगुलर इंटरवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन to the question with the word per annum. Step first, calculate average period. Average period, time after first drawing plus time after last drawing upon 2. And step 2, calculate interest on drawing. Interest on drawing equal to total drawings multiply rate upon 100 and multiply average period. So that is the formula of calculation interest on drawing. ये आपका फर्स्ट मेथड है जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं. फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन बाय पार्टनर, यानी जब कोई पार्टनर एक स्थिर यानी फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से रेगुलर इंटरवल पर, और उसका रेट भी आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, जिसमें लास्ट में लिखा हो वर्ड पर एनम, यानी पूरे साल के अंदर वो सब चीज़ें निकाल रहा है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, यानी कितना उसने ड्राइंग से निकाला है वो, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और एवरेज पीरियड. तो इससे आप ये सब चीज़ें यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम. जब इंटरेस्ट ऑन रेट तो दिया हुआ है पर विदाउट वर्ड पर एनम लिखा हुआ, तो इन सच केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड विथ ए फ्लैट रेट रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग्स. जैसा भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे चार्ज कर सकते हैं. Third one is when different amounts are withdrawn at different time intervals. We have the following two methods to calculate the amount of interest on drawing. First is simple interest method. In this method, interest on drawing is calculated for each amount of drawing individually of the basis of periods for which. Second है product method. In this method, the amounts of drawings are multiplied by the periods for which it remained withdrawn during the period. Interest for 1 month is calculated on the sum of these product. आपको इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड दिखे जाते हैं. पहला है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जिसमें आप सिंपली बेसिस पर और पीरियड्स पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं इंडिविजुअली. और अगर आपको प्रोडक्ट मेथड से यूज़ करना है तो उसमें क्या होगा, आपके ड्राइंग्स जो होगी वो मल्टीप्लाइड की जाएगी पीरियड्स के द्वारा, और उसके बाद टोटल का जो आएगा उसे सम किया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना होगा कितना पे करना है. सो दैट इज़ द टू मेथड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हाफ ईयरली ड्राइंग्स. हाफ ईयरली ड्राइंग्स फॉर ईयर व्हेन पॉइंट ए ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड. हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द अमाउंट एंड रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 12. Drawings are made in the middle of each period. Half year interest on drawing equal to amount and rate multiply rate upon 100 multiply 6 upon 12. Drawings are made at the end of each period half year. Interest on drawing equal to amount multiply rate upon 100 multiply 3 upon 12. So that is the 3 method of calculate the interest on drawing. Okay everyone. Beginning में 9 upon 12, मिडिल में 6 अपॉन 12 एंड एंड में 3 अपॉन 12 आपको यूज़ करना है जब हाफ ईयरली का है या फिर 9 मंथ्स ड्राइंग्स का है. फॉर मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ. नेक्स्ट मेथड है आपका फॉर मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ.
ए यानी बिगनिंग में आप अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3.5/12 यूज़ करेंगे, और मिडिल में अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3/12 का यूज़ करेंगे. सो दैट इज़ द ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ. बिगनिंग में कितना होता है 3.5/12, मिडिल में कितना है एंड 3/12. एंड नेक्स्ट वन फॉर यू, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट स्पेसिफाइड, जब विड्रॉल की डेट स्पेसिफाइड नहीं हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं किसी बारे में, सिर्फ उसका 6/12 यानी 6 मंथ का ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है. जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6/12. तो कहते हैं समटाइम्स डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, amount withdrawn partner as drawings is given only. In such a case it is assumed that amount is withdrawn at the average basis or withdrawn evenly throughout the year. So आप इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, आप 6 मंथ पर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और इजीली अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ टेबल ऑफ ईच एंड एवरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथ. जैसे कि आप देख सकते हैं, बिगिनिंग में है 6.5 और मिडिल में है 6 मंथ, एंड में है 5.5 मंथ, एंड नेक्स्ट वन इज़ 7.5 जब क्वार्टर में है और मिडिल में होगा और क्वार्टर में है तो 6/12 है, और जब एंड में आएगा तो 4.5/12 आएगा. ठीक है. और नेक्स्ट में व्हेन विड्रॉल इज़ नॉट गिवन, जब गिवन नहीं होगा तो मिडिल मंथ पे निकालेंगे, और व्हेन अमाउंट विड्रॉल बाय प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे. सो दैट इज़ द मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. एंड नेक्स्ट वन इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड कैपिटल, दिस इज़ द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम प्रॉफिट. ये अमाउंट प्रॉफिट में से विड्रॉन की जाती है, और दिस इज़ द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, ये कैपिटल से विड्रॉ की जाती है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट. ये डेबिट साइड में दिखाई जाती है ड्राइंग अकाउंट के, और ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो की जाती है. सो दैट इज़, एंड थर्ड वन इज़, सो दैट इज़ द थर्ड वन, इट इज़ मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सो डज नॉट अफेक्ट द कैपिटल, जो कैपिटल को अफेक्ट नहीं करती है. इट इज़ मेड आउट ऑफ कैपिटल, इट रिड्यूस द कैपिटल, ये कैपिटल को अफेक्ट करती है इसलिए उसे कम किया जाता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ इग्नोर एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये इग्नोर कर दिया जाता है जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, पर इसमें कंसीडर करते हैं, यानी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में हम कंसीडर करते हैं. इट इज़ कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. So that is the difference between drawings against profit and drawings against capital. So after that, take a look in what at a glance the drawings table for month basis. As you can see that जब ईयर बेस क्वेश्चन होगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, जब क्वार्टर बेस होगा तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे, और हाफ ईयरली बेस कहेगा तो आपको, यानी 6 मंथ बेस कहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड नेक्स्ट वन 9 मंथ बेस, तो उसे मल्टीप्लाई आप 9 से करेंगे. सो दैट इज़ द टेबल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. Okay everyone, and beginning, middle or end, all condition given. So thank you everyone, thank you, stay healthy, stay safe, thank you so much everyone. And let's again wait for next video for you. Thank you so much from RD Group of Education. Thank you.